Hello बच्चों and Assalamu alaikum. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. This class is for class second semester and my dear we were discussing about educational sociology. So in educational sociology we have discussed so far the concept of educational sociology and the important definitions of the educational sociology. तो कल ही मैंने आपको बताया था we have two more important things to discuss in educational sociology. Yes, my dear, one is the scope of educational psychology and another is the aims and importance of educational psychology. My dear, if you exactly understand what educational sociology is, you can easily understand what is the scope of educational sociology. But still, I have brought some important points that can easily highlight the scope of educational sociology. Right, my dear? This video is very simple and short, so I request all of you, please be with your Shahid sir and don't try to skip this video. And my dear, if you are new to this channel, you can easily subscribe to my channel because I am bringing you a very interesting topics that can help you in your coming examinations. So just stay with your Shahid sir and let us see what is the scope of educational sociology. So my dear, as you can easily see that today's topic that is for second semester is scope of educational sociology. Now we have discussed so many things. अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है. हमने आपको सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैंने अपनी तरह कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं. तो जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छी तरह से ब्रीफली आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी रखा और फिर हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी. नाउ वी आर डिस्कसिंग एंड वन मोर thing, we have discussed the relationship between education and sociology. आपको तो पता ही है कि you cannot separate sociology from education, neither we can separate sociology from education. So there is a very good relationship between what and what? Yes, my dear, education and sociology. This is very important and very interesting. So many students, they say that this is a little bit dry subject to understand, but no, my dear, this is very simple to understand because we have to relate education with the system, that is our society, and we have to relate society with the education. Yes, my dear, education is the part of the society. Now it is the role of education, how it can help to develop the society. That is very simple. जिस तरह माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है और माँ को एक्सपेक्टेशन होती है जब ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब ये मेरा सहारा बनेगा. सेम इज द केस विद द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन. सोशियोलॉजी इज द मदर एंड एजुकेशन इज द सन. सो व्हेन द एजुकेशन गेट्स डेवलप्ड एंड इन फैक्ट द रोल ऑफ द एजुकेशन इज नाउ टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी. बिकॉज आपको पता है कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड with the society, right, my dear? N number of problems. So the best tool that can eradicate these all problems is none other than the education. So here we are bringing some important points that can actually highlight the scope of what? Educational sociology. Right, my dear? We have already discussed a lot. We have discussed the concept and we have discussed the beautiful definition is George Piney as the father of the educational sociology. We have already discussed all these things. I hope बेटा जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं ना सेकंड सेमेस्टर को लेकर, तो यू आर वेरी मच एंजॉयिंग दीज वीडियोस. इफ रियली माय डियर, आई रिक्वेस्ट यू ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन को दबाओ, इसको ज्यादा शेयर करो. और अभी तक आई रिपीट, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस. थैंक यू. तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर. तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आई एम अगेन repeating because this is very important from the examination point of view. The topic is scope of educational sociology. So here I have written some beautiful points. Following points highlight the scope of educational sociology. Now my dear, you can easily see that एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये है कि वी स्टडी इन इट म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ
टीचर एंड स्टूडेंट, राइट माय डियर। अभी एक पॉइंट आप खास ख्याल रखेंगे, एक पॉइंट का, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी ना, इसका एरिया जो है, इसका जो स्कोप है ना, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड एरिया टू डिस्कस। स्कोप का मतलब यहां पे क्या है, व्हाट यू हैव टू एक्चुअली स्टडी इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी वी आर अप्लाइंग principles, theories and laws of sociology into what field? Into the educational field, ताकि एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को, एजुकेशन के सोर्सेज को, मतलब प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस को हम अच्छी तरह से ठीक करें। जिस तरह आपको याद है, मैंने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बताया था कि साइकोलॉजी को हम किस तरह अप्लाई करते हैं एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनको हम इरेडिकेट करें। लेकिन यहां पे एजुकेशन में जितने भी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, राइट, तो हम उनको दूर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल लॉज इनटू द एजुकेशन। तो ये इसमें क्या क्या आएगा, इसमें तो टीचर भी आएगा, स्टूडेंट भी आएगा, क्लासरूम भी आएगा। तो इनफैक्ट क्लासरूम, teacher, student and the classroom, they interact with each other, and when there is the word interaction, it becomes social. So classroom is a miniature society as per the John Dewey. Miniature classroom is also a society. Are you getting my point? So that is why there is a very good relationship between student and the teacher and their interactions. So in educational sociology, what we are actually basically understanding, that we have to understand the mutual relations of teacher and student. So teacher and student, they always have a deliberation with each other, they talk with each other, they have a very good relations with each other, they built a strong bond, okay? So this is sociological aspect. So we just study these in educational sociology. I hope बेटा इतना easy है, आपको easily समझ आएगा। नंबर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं बेटा, the place of teacher in society. Wow, very good. So we have to understand educational sociology, हमें ये भी पता चलता है कि टीचर का क्या रोल है सोसाइटी में। Are you getting me? या सोसाइटी किस तरह टीचर को प्रिपेयर करती है, यानी फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में टीचर कैसे होना चाहिए, यानी सोशियोलॉजिकली टीचर को जब क्लासरूम में जाना चाहे तो सोशियोलॉजिकली वो कैसे होना चाहे। तो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद वी कैन डिफाइन द रोल ऑफ ए टीचर। Are you getting my point? So here, the place of teacher in society is also explained under the scope of educational sociology. So simple यार, अगर जितना मैंने मतलब डिस्कस किया, आप इजीली बहुत सारे पॉइंट्स को आप खुद ही लिख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा, द प्लेस ऑफ टीचर इन सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो द स्कोप ऑफ द एजुकेशनल सोशियोलॉजी, राइट। थर्ड पॉइंट, दे आर वेरी इजी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड यार, डेफिनेशन में सब कुछ आता है। अब इस स्कोप को मैंने थोड़ा अलग से लिया है तो आपको समझने में तो दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो सोशल प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड एस्पिरेशंस, अभी तो हम बात कर रहे थे। हाँ माय डियर, अगर मैं कह रहा हूं ना एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, अगर सोसाइटी से, अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन के प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं तो एजुकेशन से हम सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सिंपल बात है। तो वी स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स, देयर नीड्स एंड देयर एस्पिरेशंस, राइट। अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके नीड्स, मतलब व्हाई दीज नीड्स अराइज, अगर वो नीड्स अराइज होते हैं इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सोसाइटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एजुकेशन से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। वी कैन इरेडिकेट बिकॉज सोशियोलॉजी, बिकॉज एजुकेशन is the best tool by which we can eradicate all these problems, right my dear? And number fourth point that you can easily remember, impact. Yes my dear, that's very important my dear, as I have already told you beta कि एजुकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम इज देयर, मेथोडोलॉजी इज देयर, यू नो। सो करिकुलम and the society, very good important relation is there, aims of education and the sociological perspective, because we can define the aims of education keeping in mind philosophical approach, psychological approach and sociological approach. तो sociology जो है, society जो है, it can have an impact on the aims of education my dear. तो what type of aim, basic society के demand क्या है, what is the demand of the society, accordingly we have to frame the aim of education, right? So that's very important. Without taking consideration of society you cannot frame the best aim, no. So you have to keep in mind, आपको दिमाग में रखना है किसको, aims of sociological perspective को देखने के बाद आप aims को frame कर सकते हो। समझ आया?
ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे, इनफैक्ट एजुकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं माय डियर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे आप एम्स की बात करो, चाहे करिकुलम की बात करो, चाहे आप मेथोडोलॉजी की बात करो, चाहे रोल ऑफ ए टीचर एंड रोल ऑफ ए स्टूडेंट, क्या जो भी कंपोनेंट्स है ना एजुकेशन का, देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑन दीज कंपोनेंट्स। तो यही तो मैंने लिखा कि इंपैक्ट we study under the scope of educational sociology, we study the impact of society on all components of education, whether it is the aim, whether it is curriculum, methodology, teacher and student. So simple. Okay, now coming to the next, in educational sociology, under the scope of educational sociology, we study relation of education with culture. Very good my dear. तो culture को हम डिटेल में पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट यूनिट इनफैक्ट जो है, उसमें हमें कल्चर पढ़ना है। व्हाट इज कल्चर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कल्चर एंड व्हाट इज बेसिकली द रोल ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो ये भी मतलब कि कल्चर किस तरह इंपैक्ट करेगा एजुकेशन पे, ये भी हमें स्टडी करना है। किस पे? स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में, इसमें भी ये पढ़ते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सोशल लाइफ upon individuals and schools. Yeah, so social life का क्या impact है individuals and schools पे, ये भी हम discuss करते हैं किसमें? Scope of educational sociology. They're very important यार, very easy to understand, and school and its relation with other institutions of the society. देखिए बेटा, अगर हम education की बात करेंगे, education is not only one institution of our society. There are so many institutions my dear. Family is an institution, kinship is an institution, religion is an institution, political system is an institution. So there is an impact of all these institutions upon the education. So we study these things also under scope of educational sociology. So these are the beautiful points. These are the very important points that can actually highlight the scope of educational sociology. I hope beta this is clear to you. अगर ये बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले before you understand the scope, first of all you have to understand the concept of educational sociology. Then after that you can write these points. तो एक अच्छा खासा 5 या 16 बिल्कुल अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो अगर हम इन पॉइंट्स को फोकस करोगे। तो अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से मतलब वॉच किया है, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें और ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है, गो थ्रू दैट बुक, अब आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि मैंने यहां पे पूरी कोशिश करी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी के ऊपर। राइट माय डियर, जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको ऐसे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। और हां, मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट साथ साथ प्रिपेयर करो, जो भी मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, और आपके पास बुक है उसमें भी थोड़ा बहुत आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे और अच्छी खासी एक कॉपी आप बनाएंगे। आपको नोट्स फिर आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है कि भाई अब नोट्स लाएंगे वो करेंगे। नो यार, जस्ट सिंपली स्टडी ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आपके पास एक्सपेक्टेशंस है वो आपको यहां पे फुलफिल इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं हफ्ते में 3 ही बार आपकी क्लासेस को अपलोड करूंगा, लेकिन बेटा मैं आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है, एंड आई एम गोइंग टू क्लियर बिट बाय बिट ईच एंड एवरी थिंग दैट्स इन योर सिलेबस। तो इसमें अब दूसरा स्टेप हमें पढ़ना है। दूसरा, अगर हम एम्स की बात करेंगे तो एम्स में भी आप ये भी लिख सकते हो, एम्स वगैरह आप आराम से यार लिख सकते हो। अगर इन 2 लेक्चर्स को आपने अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड किया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि एम्स क्या होनी चाहिए या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये अब रिपीट होगा, बिल्कुल यार रिपीट होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया वही चीज एम्स में भी आएगा और वही चीज इंपॉर्टेंस में भी आएगा जो स्कोप में आ गया। राइट माय डियर, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, नोट्स भी आपको बनानी है एक्स्ट्रा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। राइट, तो जिसमें हम एनालिसिस वो बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें भी मैं एक लेक्चर दूंगा, हालांकि उसमें 1-2 लेक्चर्स तो लगेंगे, लेकिन मैं एक लेक्चर में वो कंप्लीट करूंगा। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर। एंड प्लस उसके बाद कुछ मतलब important personalities है सोशियोलॉजी में, लाइक ऑगस्ट कॉम्टे इज देयर, इमाइल दुर्खिम इज देयर, मैक्स वेबर इज देयर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंट्रीब्यूशन है, इनका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल होने वाला, बहुत ही ईजी होने वाला है। यू आर गोइंग टू रॉक दिस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, देयर इज नो इशू इन इट माय डियर, बट जस्ट यू हैव टू स्टे विद मी, यू हैव टू जस्ट स्टे विद मी एंड वॉच ऑल माई वीडियोज, जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। आई request all of you beta, if really you have enjoyed this video, so like my video, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and have a nice day and keep always learning.